Good evening and welcome, guys, to our next module of digital marketing course. Let me share my screen with you guys. So, module number, we are here on the module number 28, which is how to write Google certification exams. And this is last but one module. And tonight, we are going to see two modules, last but one and the last module, and we are going to complete all the modules. Okay. So guys, see, there are some certification exams like the following, like Google Analytics. So these certification exams are the Google certified certification exams. So on the completion of these courses, you have to complete those courses, and you can give the exam, and they will provide Google certificate with your name. And Google Analytics has two certification programs. One is the basic and second is the advanced. Fortunately, I also I have both the Google Analytics certificates. I cracked all the courses for the Google Analytics. So let's see how to get to the Google Analytics course. So in the Google, you search Google Analytics certification. Okay, so don't click on these ads. So just go into the Google Analytics academic courses. Guys, see here, you can find different exams like Google Analytics for beginners, like I said, Google Advanced Google Analytics, Google Analytics for power users, getting started with all of this. But these two courses are the not the courses. Two exams are having a good importance. So just click on the Google Analytics for beginners. Okay, so here you need to, so this is the course content for this course. Okay, so in this course you will see, you will learn all this of why digital analytics, how Google Analytics work, Google Analytics setup. So they will show you they will teach you all these modules, all these lessons. And on the completion of this lesson, on the completion of the lessons, you will find an exam which you have to crack. And when you get more than 80% marks, I think the exam is of 50 marks. I don't actually remember. I think it is of 50 marks, and you will get, I think, 1 hour or 1.5 hour. So it's a long time when I crack these exams. So when you get 80% or more than 80% mark, they will provide you and the certification. They will mail you the certificate, and these certificates are of very importance. Guys, can you hear me? Yes, sir. Sir. Yeah. And consider on the first attempt you failed the exams. Okay. So don't worry. You can re-attempt the exam within 24 hours. After the 24 hours. Okay. Yes, sir. आपका अगर ये एग्जाम में आप फेल हो जाते हो और आप एग्जाम में पास नहीं हो पाते हो, तो वो आपको बताएंगे कि ये एग्जाम में आपको उतने मार्क्स नहीं आए हैं. देन you can give these exams again after 24 hours, I think. So next day, 24 hours or 48 hours, next day you can give exams again. Okay, so there is no negative marking, and you can give the exam. And exam is very simple. For the beginners it is very simple, and advanced modules are a bit difficult, but
you can crack it, no issues. So this is for the Google Analytics. Same, you can have Hootsuite social media marketing certification. Okay, so all these courses are free and they provide certification for free, but you need a good knowledge to crack these courses. Okay, so let's see. Hootsuite social media certification. Enter. So education.hootsuite.com. So Hootsuite Academy. Here you can take course fee is 199. Okay, so this is not a free course, so we don't need this course. Okay, so Google Ads certification, this is a free certification, so it's a good certification if you want to make a career in the PPC. So skillshop.exceedimslms.com. Okay, so you can have different shopping ad certification, Google Ads display certification, Google Ads search certification. There are n number of certification courses with the Google, and these are free courses. You will get certification for free, but you need a good knowledge to crack these courses. So for to crack this, you need you need digital marketing course for the knowledge. Okay, then next is same is the HubSpot digital garage. Okay, so this is a Facebook, I think Facebook course, social media course. Control C. Facebook also have a certification course. I think this is one, fundamentals of, no, not this one. Facebook course. Facebook, yeah, blueprint certification. Okay, so Facebook also have a professional certificate, so you can okay, so you can also go for this course and see there is so you can go for these courses and give an exam. And also Facebook has Facebook digital unlock unlock, I think something like this. They used to have a certificate program, so they changed that to the blueprint certification. Okay, so पहले इसको फेसबुक डिजिटल अनलॉक समथिंग बोला जाता था जब मैंने किया था, तो अभी इसको बोल रहे हैं फेसबुक ब्लूप्रिंट। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फेसबुक की कोर्सेस है और यहाँ पे एग्जाम्स है, तो आप यहाँ पे जाना है आपको, और ये कोर्सेज के लिए आपको रजिस्टर करना है और ऑनलाइन एग्जाम देना है। और अगर आप फेल हो जाते हैं, क्रैक नहीं हो पाता है, टेंशन नहीं लेना है। 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद फिर से आप एग्जाम दे सकते हो, 100 टाइम्स एग्जाम दे सकते हो जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपको एग्जाम्स देना है और सर्टिफिकेट्स लेना है। ठीक है, देन यूट्यूब सर्टिफिकेशन ऑल्सो, यूट्यूब का सर्टिफिकेशन कोर्स है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये सब आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, देखिए यहाँ से आप जाके आपका कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं और ये कोर्स हम इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन। सो अभी आपको इसमें जाना है और कोर्सेज को अटेम्प्ट करना है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए।
नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ, सिंपल है, ये कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो डिजिटल गैराज, ये भी अच्छा कोर्स है डिजिटल गैराज। तो आप ये पीपीटी से देख लेना, ये जो कोर्सेस है, इतने कोर्सेस सफिशिएंट है हमारे लिए एज ए डिजिटल मार्केटर बिगिनर। ओके, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये मैं ये बता रहा था आपको, अनलॉक डिजिटल मार्केटिंग अनलॉक। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है, सो ट्राई टू गेट दिस सर्टिफिकेशन and this is totally free guys. This course is a very nice course, so you can start the course. You just need to register for it with the Google account. They don't need anything for the exam. You can skip the, आप डायरेक्टली एग्जाम भी दे सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा, जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां पे कुछ लाइक मॉड्यूल्स आएंगे आपको पढ़ने के लिए, वीडियोस आएंगे, तो यू कैन स्किप दैट इफ यू डोंट नीड टू go for those videos and all the मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेशन पे जाना है तो आप सब स्किप करके डायरेक्टली सर्टिफिकेशन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो गाइज ये था हमारा सर्टिफिकेशन के बारे में। तो ये जो 7 कोर्सेस है, इसमें भी बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे गूगल एनालिटिक्स में 2 है। ठीक है, ये गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ है। तो इतने सर्टिफिकेशन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगे अगर आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सर तो सर जो सेकंड वाला नहीं करने का भी जो चार्जेस है ना सर। हाँ, वो छोड़ दो आप, सेकंड वन। सर एक्चुअली मैंने गूगल एड्स का जो मैं किया था पहले सर्टिफिकेशन किया था, ये जो स्किल शॉप, मैंने बोला मैं छोटा कोर्स किया था वहाँ पे गूगल हाँ एड्स का मैं किया था, गूगल एड ऐप और गूगल एड वीडियो, ये दोनों हाँ, किया। तो और दोबारा करने का फिर भी मेरे तो को आपको एक एक सर्टिफिकेशन एक मिला साल है का। वहां से? हाँ मिला, दो में दिया है। हाँ तो उसमें तो 1 ईयर का वो मिला, 1 ईयर वैलिडिटी है। हाँ हाँ तो फिर भी देने का सर एग्जाम? हाँ, दे दो ना, नॉलेज बढ़ जाएगा आपका, अच्छा है ना, तो क्या कुछ इशू नहीं है ना, डबल दे सकते हैं। ओके सर। हाँ और वो भी दिया था, वो कंटेंट मार्केटिंग है ना सर, जो हाँ हबस्पॉट, वो भी दे दिया, वो 2 ईयर्स का वैलिडिटी है। हाँ, तो तो फिर भी उसका ठीक उसका है। भी देने का? नहीं तो अगर 2 इयर्स वैलिडिटी है तो ठीक है, आपको अगर नहीं देना है तो आप मत दो, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव दैट सर्टिफिकेट, सो यू कैन नहीं नहीं, पर गो वो फॉर। कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना सर जो करियर में? अरे कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इतना ओके टेंशन सर, मत ओके। लो आप। मुझे यस यस बहुत चिंता होती है आपकी। ओके सर। हाँ, कुछ नहीं श्योर होता है। सर। हाँ, ठीक है, और कोई यस डाउट यस। है उसमें पूछिए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर। So guys, after the certification, we have to see the last module, that is module number 29, which is resume writing and job hunting. Okay. So guys, see, in the resume writing and job hunting, अभी कुछ चीजें हैं जो रेज्यूम में जो डालने हैं नहीं डालने हैं, वो जो ध्यान में रखने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट पुट एवरीथिंग ऑन दैट। इसका मतलब क्या हो गया कि हर चीज मत डाल दो रेज्यूम के अंदर। हमें रेज्यूम जो है शॉर्ट बट स्वीट बनाना है। अब आप जब भी रेज्यूम बनाओगे तो लाइक मेरा 10th हुआ, 10th के बाद मैंने 1-2 महीने का कोर्स किया, फिर 11th में एडमिशन लिया, 11th के बाद मैंने 1.5 महीने का कोर्स किया, फिर 12th में एडमिशन लिया, ऐसा नहीं करना है। सो we stick to the point, stick to the aim which we are focusing on and do accordingly. So हमको जो फर्स्ट पॉइंट है उसका ये मतलब है कि शॉर्ट बट स्वीट बनाना है, और जो काम की चीजें हैं वो उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, एंड बट कीप ए मास्टर लिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स। अभी देखो, रेज्यूम के अंदर याद रखना आप, कभी भी जब आप रेज्यूम बनाएंगे तो कभी भी कोई भी काम में रिवर्स इंजीनियरिंग जब आप करेंगे, मैं तो रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ और मुझे उसमें सक्सेस मिलता है।
अभी मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे कौन सी जॉब चाहिए। पहले सबसे पहले अभी आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो जाएगा, फिर आपको जॉब करना है, ठीक है। अब जॉब करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि पोजीशंस कौन-कौन से होते हैं जॉब के लिए, ठीक है ना? कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव होता है, सोशल मीडिया एनालिस्ट होता है, हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है। और कौन-कौन से पोस्ट होते हैं पहले वो देखो, और उसमें ये देखो कि आप किन-किन पोस्ट को टारगेट कर रहे हो। जी, कहाँ-कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको उन जॉब्स के हिसाब से रिज़्यूम डेवलप करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपका इंटरेस्ट है कंटेंट कंटेंट राइटिंग में, ठीक है? आपका इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में और आप बस आपके रिज़्यूम में डाल के रखे हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, और बस एक लाइन में लिखा है कहीं पे कोने में कंटेंट राइटिंग। तो जो कंटेंट राइटिंग को आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, रिज़्यूम भेजोगे, तो व्हाई ही व्हाई समवन विल हायर यू? Because you haven't focused on content writing. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले हो, उसके हिसाब से रिज्यूम बनाना है। या फिर एक काम कर लो कि हर एक पोजीशन के हिसाब से उस अलग-अलग रिज्यूम डेवलप कर लो। ठीक है? ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन नौकरी डॉट कॉम पे नहीं चलेगा। नौकरी डॉट कॉम पे तो एक ही रिज्यूम बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर आप पर्सनल मेल करने वाले हो, पर्सनली आप क्या करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो, तो यू कैन मॉडिफाई योर रिज्यूम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है? चलो, एंड नेक्स्ट इज पुट द बेस्ट ऑफ अबोव द फोर। जो काम सबसे अच्छा है, जो सबसे अच्छा आपने लाइक जो आपका स्ट्रेंथ है, वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल आपने बहुत कोई अच्छा खुद से प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत अच्छी वेबसाइट डेवलप की है, जो कि बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उसको आप कहाँ डाल रहे हो, लास्ट में डाल रहे हो, और जो एचआर है वो आपका रिज्यूम स्टार्टिंग में पढ़ता है और शुरू में ही बोरिंग लगता है, तो वो आगे पढ़ता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो आपने जो बहुत अच्छा वाला काम किया है वो तो वो देखेगा ही नहीं। तो आपको जो आपका काम है वो हाईलाइट करना है स्टार्टिंग में। ठीक है? देन नेक्स्ट, डिच द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अभी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव डालते हैं, आप ये आपकी मर्जी है, आप इसको डालो या नहीं डालो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। लेकिन एक ट्रेडिशनल वे चलता आ रहा था कि भाई ऑब्जेक्टिव हम डाला करते थे। कीप इट रिवर्स क्रोनोलॉजी। अभी देखो क्रोनोलॉजी को क्या मतलब है, कि फॉर एग्जांपल अभी आप आपके एजुकेशन डाल रहे हो, ठीक है? तो पहले पहले क्या डालोगे? 10th डालोगे, फिर 12th डालोगे, फिर डिग्री, फिर मास्टर्स डालोगे, या फिर पहले मास्टर्स डालोगे, फिर डिग्री डालोगे, फिर 12th, फिर 10th डालोगे? क्या डालोगे? तो पहले मास्टर्स डालेंगे। राइट, राइट। तो ये रिवर्स क्रोनोलॉजी, जो रिसेंट हमारा काम है, जो रिसेंट हमारा एक्सपीरियंस है, हम वो डालेंगे, ठीक है? देन कीप इट टू ए पेज। अभी पेज को मैं आगे आपको फॉर्मेटिंग बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा पेजेस में नहीं भरना है कि बहुत हमारा रिज्यूम, मेरा 8 पेज का रिज्यूम है मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। 1 पेज का भी रिज्यूम हो सकता है, और दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप 1 पेज का रिज्यूम बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें उतना सारा ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होना चाहिए, पूरा सब आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल्स, आपके अंदर जो आपके जो सर्टिफिकेट्स है, नॉलेज है, वो सब शो होना चाहिए। कंसिडर एन ऑनलाइन सप्लीमेंट। और आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन सप्लीमेंट का क्या मतलब है कि अभी आप जब आप रिज्यूम बनाओगे तो किस फॉर्मेट में बनाओगे? डॉक डॉक में बनाओगे, वर्ड फाइल में बनाओगे, किसमें बनाओगे? गाइस, हाँ सर।
रेज्यूम आपका किस फाइल में सेव करोगे? सर फॉर्मेट डॉक में docx डॉक वर्ड डॉक्स में। वर्ड यस सर। क्यों डॉक में सेव करोगे पीयूषा? सर पीडीएफ में करेंगे, मैं तो पीडीएफ में करता हूँ। यस यस, हम पीडीएफ में करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डॉक में करोगे ना तो वहां पे अगर आप कोई लिंक नहीं डाल पाओगे, ठीक है। और अगर पीडीएफ आप डालोगे तो पीडीएफ में आपका कोई लिंक डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी वी आर ए डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, तो हमको लिंक बहुत लगते हैं। लाइक वहां पे हम बता सकते हैं दिस इज माय फेसबुक प्रोफाइल, दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। तो वहां पे आप लिंक डाल सकते हो। तो आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, लिंक डाल सकते हो। और वो कब पॉसिबल है? जब आप पीडीएफ में सेव करोगे, ठीक है। यस सर। नाउ फॉर्मेटिंग में देखो सिंपल रखना है, केयरफुल रहना है कि भाई फॉर्मेटिंग कैसे हो रहा है। मेक यूर कॉन्टैक्ट इन्फो प्रोमिनेंट, आपका कॉन्टैक्ट इन्फो प्रोमिनेंट रखना है। कॉन्टैक्ट इन्फो ऊपर जो रहेगा नीचे भी वही रहना है, और जो आपका फोन नंबर चालू है वही रखना है। गेट हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोफेशनल सर्विसेज भी हायर कर सकते हो। लाइक naukri.com वाले भी कुछ पैसा लेके 2-2,500 रुपए लेके आपका रेज्यूम बना के देते हैं। और दूसरे भी बहुत सारे सर्विसेज है, तो आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। तो जस्ट फॉलो दिस रूल्स एंड मेक अ परफेक्ट resume. ओके, देन नेक्स्ट, अभी उसके बाद क्या डालना है? ए वर्क एक्सपीरियंस। तो जो आपका रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है वो आप ऊपर डालोगे, फिर उसके बाद से आप नीचे डालोगे। लाइक 2021 में मैं जहां पे काम कर रहा हूँ वहां का मैं कंपनी का नाम डालूंगा। फिर लाइक मैंने अगर मैंने 3 साल काम किया है तो 2018 से 17 से पहले वाला एक्सपीरियंस डालूंगा। फिर 2015 वाला डालूंगा, फिर 14 वाला डालूंगा, फिर 12 वाला डालूंगा, फिर क्या करूंगा 10 वाला डालूंगा। तो जो मेरा 10 साल वाला एक्सपीरियंस है मैं वहां पे रिवर्स जाऊंगा, जो रिसेंट है वो पहले डालूंगा, फिर बाद बाद वाला उसके बाद वाला डालूंगा। अभी देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अभी क्या हो गया कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। कंसिडर यू आर ए फ्रेशर, सो डोंट वरी। आपका अगर आपका एक्सपीरियंस है भी, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का बट रिलेवेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा टेक्निक निकालना है, कुछ ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जिससे कुछ रिलेशन बन जाए उस काम से, जो कि ऐसा लगे कि हमारा रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल वैकेंसी है वेबसाइट डिजाइन वाला, ठीक है, और आपने काम किया है एसईओ में, तो एसईओ एंड वेबसाइट डिजाइन आर समथिंग रिलेटेड टू ईच अदर, so you can show something related to the website design also. So you need to change the resume every time. ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रेज्यूम बनाया और 10 साल वही रेज्यूम चला रहे। हर बार हर वैकेंसी के हिसाब से आपको आपके रेज्यूम को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे जो रिक्वायरमेंट मांगा है उसको कॉपी करके पेस्ट करके और बस मेल कर रहे, ऐसा नहीं है। हमको हर पॉइंट पे ध्यान देना है कि हमारा रिक्वायरमेंट किस तरह से है और मेरे रेज्यूम में कौन कौन से पॉइंट है जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, क्यूरेट योर बुलेट पॉइंट्स, और आपको आपके बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि बुलेट पॉइंट्स का साइजिंग वगैरह क्या है, कैसा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होना है, सब अलाइन रहना है, ठीक है। ये जो देखो यहाँ पे जो साइड में जो मार्जिन आते हैं वो मार्जिन भी अलाइन होना चाहिए, इधर ये अलाइन होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मेटिंग होता है ना, ये जो सेंटर वाला, लेफ्ट वाला, और एक होता है देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला है, ये दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है, तो 1.125 होता है, 1.5 होता है, 2 होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मेंटेन रखना है। और यहाँ पे आपका जो फॉन्ट है वो भी यूनिवर्सल फॉन्ट रखना है। ऊपर जो हेडिंग है, सब पे ऊपर का हेडिंग का एक
फंड होना चाहिए और उसका एक साइज होना चाहिए। नीचे जो आप लिख रहे हो उसका एक फंड होना, एक ही फंड होना चाहिए सबका, और क्या होना चाहिए, एक ही साइज होना चाहिए, और सब पे एक ही क्या होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए या फिर नंबर्स होना चाहिए, और फॉर्मेटिंग अच्छे से करना है। देन डोंट नेग्लेक्ट नॉन ट्रेडिशनल वर्क। फॉर एग्जांपल आपने कुछ फ्रीलांसर का काम किया है और वो 2 महीने किया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे जाने दो, 2 महीने ही तो काम किया है, यहाँ पे रिज्यूमे क्या डालूं, क्यों डालूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने 15 दिन भी काम किया है तो आप वहाँ पे मेंशन करो कि आई हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दिस एंड आई हैव आल्सो वर्क फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरेशन नहीं डालना है तो मत डालो, एक्चुअली बताओ कि आपने काम किया है। अगर आपने कंपनी में काम नहीं किया है, कुछ पर्सनल काम किया है वो डालो। ऐसा मत सोचो कि ये मेरा पर्सनल काम है, अगर वो रिलेटेड है तो रिलेटेड काम आपको दिखाना ही चाहिए। देन नेक्स्ट यूज कीवर्ड्स, और आपको आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स भी यूज करने हैं। देन एजुकेशन फर्स्ट, एजुकेशन सेकंड, एक्सपीरियंस फर्स्ट देन एजुकेशन सेकंड। पहले आपको एक्सपीरियंस डालना है, फिर एजुकेशन डालना है, और ये भी एजुकेशन भी आपको उल्टा डालना है, लाइक मास्टर्स पहले डालेंगे, फिर डिग्री डालेंगे, फिर 12 डालेंगे, फिर 10 डालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब डालना है। उसके बाद आपको स्किल्स, अवार्ड्स एंड इंटरेस्ट, इसके अंदर भी आपको ये सब चीजें डालनी है कि आपके जितने भी स्किल्स है, लिस्ट आउट योर स्किल्स, बीवेयर ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड बी कंट्रोवर्शियल। ऐसे कुछ स्किल नहीं डालना है, इंटरेस्ट नहीं डालना है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, तो उन चीजों से बचना है, कंट्रोवर्शियल चीजों से। अगर आपका कुछ गैप हुआ है तो आपको गैप को फिल करना है। फॉर एग्जांपल 12th के बाद आपने एक साल 12th के बाद आपने एक साल गैप किया था, तो उसको आप उसको दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स किया है, कुछ पढ़ाई की है, इस तरह से आप दिखा सकते हो। एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सेव इट एज पीडीएफ। पीडीएफ में अगर आप सेव करोगे तो वहां पे आप लिंक्स आप डाल सकोगे, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, पूछिए आप। गाइस कुछ डाउट है? नहीं सर, डाउट तो नहीं है सर, कोई मतलब। तो देखो ये सब चीजें फॉलो करो आप लोग और अच्छा सा रिज्यूम बनाओ। एंड वी हैव 1 minute लेफ्ट and our modules are over, so we will discussing other your queries and other problems in our next session. So try to join after 10 minutes at 8:50, and we will discuss all your remaining doubts, and we'll try to clear your